Good evening, everyone. Uh, Mahisa, am I audible? Sir, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा होगा। Okay, sir. So, should we begin with the session? It's time. Like, start करें. ठीक है। So, good evening. I extend a warm welcome to all on the behalf of Sol Foundation for our Journey to Road Safety webinar series on the topic Homeless People in Road Accidents. Let me kick off today's session with a brief introduction of Indian Road Safety Campaign, following which we will have a discussion with Mr. Mahesh Gajera. I also request all the participants to post your questions or have your questions with you, and by the end of the session, we will have a discussion with audience. So, Indian Road Safety Campaign is an initiative by Sol Foundation working towards making safer roads in India. It started as an IIT Delhi project due to the death of students in a road accident. Today, IRSC has gradually grown to be the largest youth organization in India. It's been working in close association with organizations such as United Nations, WHO, Ministry of Road Transport and Highways, various state governments, and other research centers across the world to endeavor its Vision Zero. To achieve this, IRSC has worked with over 1,500 colleges, 25,000 volunteers across 50 plus cities in India in various domains such as awareness, technical innovation, law, order, policy, medical, and etc. Indian Road Safety Campaign has also launched a Journey to Safety webinar series in which we bring all the stakeholders together on one platform and try to spread awareness about the importance of road safety and the protocols that one needs to ensure. Today's eminent speaker is Mr. Mahesh Gajera. He is a program manager at Ajivka Bureau. Ajivka Bureau is a public service initiative which provides services and solutions to seasonal immigrants, laborers, and informal workers who work outside the grid of states, services, and institutions. He also provides strategic direction to Ajivka Bureau's programs and also coordinate field teams in Ahmedabad. Previously, Sir has worked at a range of organizations including Bhartiya Agro Industry Foundation, Gram Vikas Trust, and Gujarat Livelihood Promotion Company. He has over an experience of 20 years in implementing participatory livelihood programs among tribal communities. Mr. Mahesh also holds a master's in rural studies from Lok Bharti Gram. Now, we'll begin our session with Mr. Mahesh, and this session would be conducted in Hindi as Sir is comfortable to communicate with us in Hindi. So, should we begin with our questions? सर मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ आपको? हेलो महेश सर. हाँ हेलो। सर मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। तो सेशन संदेश चालू। ओके सर, फिर मैं अपन हेलो हेलो सर, कैन यू रिपीट? सेशन चालू करें। हाँ सर, बोलिए. यस सर. ओके सर,
मैं या सर कंटिन्यू। धन्यवाद और सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। जैसा हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल के बाद ये जो पूरे देश भर में और पूरे विश्व में माइग्रेंट लेबर और माइग्रेशन की स्थिति क्या है उसके बारे में जो मार्च का लास्ट वीक था उसमें सबने देखा है। तो माइग्रेशन जो है अब एक वास्तविकता बन चुकी है। माइग्रेशन को रोकना अब संभव नहीं है, उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और माइग्रेशन के साथ जो भी पक्ष जुड़े हुए हैं, चाहे वो उसके बेसिक एंटाइटलमेंट के हो, सिविक इम्यूनिटीज़ के हो, नागरिकता का हो, या फिर यूनिवर्सलाइज बेनिफिट का मुद्दा है, तो वो सारे मुद्दों पर अब काम करने की ज़रूरत है। और आजीविका संस्था जो है 2005 से माइग्रेशन और लेबर के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये जो माइग्रेशन चल रहा है ये केवल रूरल टू अर्बन माइग्रेशन नहीं है। भारत भर में रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। हम जैसे यदि जानते हैं कि बिहार से बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लेबर पंजाब हरियाणा में जाते हैं, ऐसे ही गुजरात में, खास करके गुजरात की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहदें हैं, वहाँ से ट्राइबल माइग्रेंट बहुत बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं। तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन में खास करके भी एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और उसमें फैमिली के साथ माइग्रेशन हो रहा है। सेकंड जो एक बहुत बड़ा है कि रूरल टू अर्बन, गांव छोड़ के लोग शहरों में रोजगार की तलाश के लिए आ रहे हैं। और ये जो पूरा पूरा एक सेगमेंट है और कॉरिडोर भी देखिए हम, तो 3-4 स्टेट जो है वो रिसीविंग स्टेट है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, कर्नाटका हो, केरल हो। और पूरे भारत में ये प्रवास जो है और माइग्रेंट लेबर है वो सिंगल और परिवार के साथ माइग्रेंट कर रहे हैं। अब इस माइग्रेशन में जो है उसके अतिरिक्त सीजनलिटी, क्योंकि जो भी ट्रेड में ये लोग आते हैं वो अलग अलग व्यवसायों में काम करते हैं। और बहुत पॉपुलर जो ट्रेड है इंडिया में, खास करके बोलते हैं निर्माण क्षेत्र में लोग काम करने जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ट्रेड बहुत बड़ा है जो माइग्रेंट को रोजगार देता है। लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि रोड एक्सीडेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो जो भी अनसेफ काम है कंस्ट्रक्शन में, ऊंचाइयों पर काम करना, सेफ्टी बेल्ट, इक्विपमेंट नहीं होना सुरक्षा का, और वहाँ पर जो जो भी व्यवस्था है वो उस प्रकार की है ताकि वहाँ पर लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। सेकंड जो 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 की चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन के अलावा फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो, चाहे वो प्रोसेसिंग से भी जुड़े यदि व्यवसाय है फैक्ट्रियों में, तो वहाँ पर बहुत बड़ा आधे माइग्रेंट आ रहा है। तीसरा जो ये होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, जहाँ पर होटलों में कुक, कैप्टन, शेफ ये सब लोग आते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी सी गुजरात की और अहमदाबाद की बात करता हूँ। तो अहमदाबाद का लगभग पॉपुलेशन जो है करीब करीब अभी करीब 65 लाख का है। और हमारा अंदाजा है कि इसमें 65 लाख में अहमदाबाद में करीब 12 लाख से 13 लाख माइग्रेंट लोग हैं। तो पूरी जो 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 इकोनॉमी है वो माइग्रेंट बेस्ड इकोनॉमी है और सर्विस सेक्टर पूरा उसी से ही चल रहा है। तो माइग्रेंट्स को हम जो जो बोलते हैं कि शहर का निर्माता है, ये कोई शहर को खराब करने नहीं आ रहे, वो शहरों की सुविधा बढ़ाने के लिए और शहर को निर्माण करने के लिए ये भी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन, होटल इंडस्ट्री, घरों में जो झाड़ू पोछा मारते हैं, डोमेस्टिक वर्कर है, फैक्ट्रियों में है, तो उस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेंट लेबर है। अब ये जो माइग्रेशन रूरल टू अर्बन क्यों हो रहा है, हमें उसकी जो जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि ये जहाँ से माइग्रेंट हो रहा है वो ज़्यादातर सेमी एरिड जोन है, एक वो वर्षा बारिश कम है वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत विकास नहीं हुआ, लैंड साइज बहुत कम है,
सरकार की ओर से जो गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर का वहाँ पर बहुत कम है, और लैंड होल्डिंग साइज भी बहुत कम है वहाँ पर ट्राइबल बेल्टों में, खास करके बहुत जमीनें कम है। तो उसके कारण अब जो वास्तविकता है कि वहाँ से गांव छोड़ के अब शहरों में आना ही पड़ रहा है। और जिस हिसाब से सरकारों का भी जो जो ये विकास मॉडल है वो अर्बन विकास की बात कर रहे हैं, और वो एक मॉडल बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, जिसके कारण एक आकर्षण के कारण भी गांव के यूथ जो है वो अर्ली एज में 15-16 साल की उम्र में वो शहरों के लेबर मार्केट में एंटर हो जाते हैं, और अर्ली एज में 35-40 साल में रिटायर्ड होकर वो वापस गांव चले जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल है। उसकी सीजनलिटी भी अलग अलग है, अलग अलग काम में। कंस्ट्रक्शन की सीजनलिटी अलग है, टेक्सटाइल, होटल इंडस्ट्री में जब तक शादियों की सीजन होती है तब बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में यूथ जो है, यंग लड़के और लड़कियां ज़्यादा बड़ी मात्रा में आते हैं। तो उसकी सीजनलिटी और उसके कैरेक्टर्स, पर्टिकुलर एक समूह की जगह से एक समूह में ही आते लोग, ये कोई अलग अलग जगह से नहीं आता। तो इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि माइग्रेशन की जो पूरी कम्युनिटी है उसमें सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है वो ट्राइबल का हो रहा है, आदिवासियों का भी, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, इवन गुजरात का भी ट्राइबल एरिया है, वहां से भी हैवी माइग्रेशन है। और वो माइग्रेशन के कारण उसकी लाइवलीहुड का करीब करीब 70 से 80% इनकम जो है वो माइग्रेशन से आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में ट्राइबलों का माइग्रेशन हो रहा है। सेकंड, SC ST कम्युनिटी, जो दलित परिवार है, वंचित लोग हैं, उन लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन में एक कास्ट कॉम्बिनेशन भी है, और उसमें जो जो हमेशा लेबर होंगे और लोअर कास्ट के होंगे, और जो ठेकेदार है, सुपरवाइजर, मैनेजर है, वो हमेशा अपर कास्ट के ही रहेंगे। तो एक उसकी जो जो सोशल नेटवर्क या कास्ट और क्लास जो है, कास्ट और क्लास भी माइग्रेशन में बहुत बड़ा एक असर करता है कि वो किस कास्ट का और किस किस जगह का है, उसी आधार पर उसका काम सुनिश्चित होगा। मैं थोड़ा सी कोरोना काल की बात करूँ आपको, कि कोरोना काल में जिस प्रकार से शहरों से मजदूर अपनी फैक्ट्रियों से बाहर निकल के आ गए शहरों में और गांव जाने के लिए, तब शायद सबको मालूम पड़ा कि इस शहरों में इतने लाखों की संख्या में मजदूर है। नहीं तो अभी तक ये माइग्रेंट बहुत हिडन कम्युनिटी है, ये आसानी से दिखते देख नहीं है हमें। तो हम देख चाहते हैं कि ये तो बस यही है। कहीं माइग्रेंटों की अलग अलग आइडेंटिटी भी हो गई है। जैसे जी गुजरात की मैं बात करूँ तो यहाँ जो जो घरों में काम करते हैं तो बोले रामा है, शंकरा है, या या तो यूपी का आएगा तो बोले भैया है, कोई मामा बोलते हैं। तो उसकी एक अलग अलग आइडेंटिटी भी हो गई है। लेकिन ये कोरोना ने सबको दिखा दिया है कि माइग्रेशन के ऊपर देश में कहीं पर भी इस प्रकार से काम नहीं हो रहा, उसका आंकड़ा ही कहीं नहीं। पहली बात हम माने कि देश में माइग्रेशन को लेके या माइग्रेंट का आंकड़ा ना भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, इवन इंडस्ट्री इंडस्ट्री के पास भी इसका आंकड़ा नहीं है, ना कोई एस्टिमेट नहीं है। जब कोई एस्टिमेट ही नहीं है माइग्रेंट का, तब उसकी योजना बनाना, पॉलिसी में उसको शामिल करना, वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसमें संबंध जो है ठेकेदार, मालिक और लेबर का, ये बहुत अलग प्रकार का है। इसमें लगभग 6 से 7 लेयर होते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से लेकर ठेकेदार और लेबर तक। तो इसमें रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करना वो बहुत चैलेंजिंग है। तो हम आजीविका संस्था और हमारा मानना है कि पूरा कोरोना काल में जो ये अवदशा हुई मजदूरों की, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि इसका औपचारिक, फॉर्मली कोई एग्रीमेंट नहीं था, फॉर्मली कोई संबंध नहीं था। यहाँ एस्टेब्लिश करना मुश्किल था कि ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं या इस कंपनी में काम करते हैं। तो पूरी इनफॉर्मालिटी के कारण ये सब मजदूरों को रोड पर आना पड़ा। उसके लिए उपयोग खाने की व्यवस्था नहीं हुई, उसके लिए उपयोग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हुई, रहने की भी व्यवस्था नहीं हुई।
आप यकीन नहीं करोगे कि जो भी ठेकेदार या जिस कंपनी में वर्कर 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, उस मजदूरों को भी मालिक ने खुला छोड़ दिया। मालिक अपने ने घरों में कैद हो गए और मजदूरों की केयर करने वाले ना तो इंडस्ट्री वाले बचे, ना उनके ठेकेदार। तो जो भी कुछ कोरोना काल में व्यवस्था हुई है वो सरकार की ओर से एक पीडीएस की थोड़ी सिस्टम का सपोर्ट मिला। इसके अलावा जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला है। सेकंड जो है इसमें हमने कोरोना काल में हमने देखा है कि बहुत सारा एक्सीडेंट्स हुई, दुर्घटना हुई, चाहे वो रेलवे ट्रैक पर हो, चाहे वो रोड दी एक्सीडेंट हो, पैदल चलते चलते दी एक्सीडेंट हो। वो क्यों हुआ ये? इसके पीछे जो वो लॉजिक है कि इन मजदूर जब गांव छोड़ के शहरों में आता है तो उसका कोई एक्सपोजर जो है, उसको कोई जानकारी या उसको इस प्रकार की चेतना जो है वो नहीं है। वो एक गांव का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में आके वो शहर में भी आ गया है, तो उसका व्यवहार जो भी है वो अर्बनाइज नहीं हुआ है, तो जिसके कारण उसके पास इतनी जानकारी भी नहीं है और जिस हिसाब से उस शहर को भी वो नहीं जानता। हमारे 15 साल के अनुभव में हम यही बता रहे थे, जो मजदूर अहमदाबाद के जिस पॉकेट में काम करते उस पॉकेट के आसपास का भी सरकारी एरिया या और भी जगह है पब्लिक जगह, वहां पर भी मजदूर नहीं जाते। वो गांव से सीधा अपने वर्क साइट और वर्क साइट से सीधा अपना गांव। तो शहरों के साथ उसका एकदम नाता ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। इस शहर में मजदूरों की केवल इकोनॉमिकल लाइफ है, सोशल लाइफ आज भी गांव में है। तो और इस शहर ने कभी इसको अपनाने की कोशिश भी नहीं की है कि ये मजदूर 20-20 सालों से 25 कुछ कुछ ट्रेड में तो थर्ड बिग जनरेशन है, क्योंकि ये माइग्रेशन का जो दौर है वो बहुत पुराना है, जब मिल वर्कर थे तब का है। तो कहीं थर्ड जनरेशन में आने के बावजूद भी अभी मजदूरों के पास शहरी नागरिकता नहीं है, शहरी सिविक इम्यूनिटीज जो हम बेसिक मूलभूत मांग मांग जो है और भी जरूरत है मजदूरों की, पीने का पानी है, शौचालय है, रहने की व्यवस्था है, एजुकेशन हो, हेल्थ सिस्टम हो, कुछ नहीं है। ना तो उनको शहर की कोई सुविधा मिलती है, ना इंडस्ट्री कोई भी प्रोवाइड करती है इसको। तो वो अपने तौर पर इनफॉर्मली रिलेशन के कारण वो किसी की भी जिम्मेदारी है नहीं है। तो ये कोई भी जिम्मेदारी से सब उससे हट जाते हैं। तो जब तक ये कोरोना काल में जब मुंबई से अहमदाबाद से जब वापस राजस्थान में लौट के मजदूर आ रहे थे, जब अपने गांव में आ रहे थे, तो हमें उस टाइम पर उस हफ्ते हमें लगा कि अब मजदूर जो है ना वापस शहर नहीं जाएगा। उसको इतना भी गुस्सा जो था वो मीडिया में भी एकदम साफ था। आज मीडिया भी भूल गया है इसको कि अभी मजदूरों की हालत क्या है। कोविड के टाइम सबने बताया, लेकिन अभी मजदूरों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। और हमें भी लग रहा था कि मजदूर बहुत गुस्से में है, वो शायद अब वापस नहीं मुड़ेगा। लेकिन आश्चर्य होगा कि जैसे ही जून महीने में अनलॉक हुआ, मजदूर तुरंत ही वापस शहरों में आने लगे। और मैं अहमदाबाद में जब जून महीने में था, तो सबसे पहले आदिवासी मजदूर, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर अपने परिवारों के साथ सबसे पहले लौट गए, क्योंकि उसके पास एक तो सेविंग नहीं थी, जो भी सेविंग थी वो गांव में खत्म हो गया खर्चे। कई सारे वर्करों को हमारे अध्ययन में, हमने जब कोविड के बाद एक अध्ययन किया तो उससे भी मालूम हुआ कि लगभग ट्राइबल माइग्रेंट जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे, एक मजदूर के ऊपर करीब करीब 60,000 रुपये का कर्जा बढ़ गया है। और वो कर्जा कोई बैंक का नहीं, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नहीं है। वो कर्जा जो है वो प्राइवेट मनी लेंडर का है, जो 24%, 30%, 40% ब्याज से लेते हैं। और यही लोग परिवार के साथ सबसे पहले आ गए। तो हमने भी मजदूरों को पूछा कि आप वापस क्यों आ गए? आपको तो ना शहर वालों ने कुछ व्यवस्था की, ना आपके ठेकेदार ने किया, ना आपके मालिक ने कोई व्यवस्था की। तो उनका एक जो था रवैया था कि कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ शिकायत करें, मतलब हमारी तो सुनवाई कहाँ होगी। इन मजदूरों की कोई अपेक्षा ही नहीं है, ना इन इंडस्ट्री के साथ, ना इन शहरों। जब किसी की अपेक्षा ही नहीं है तो कंप्लेन क्या करेगा? और वो उन्होंने एक अपनी जिंदगी का जो है पार्ट गिन लिया है। तो ओवरऑल जो है ये पूरा पिक्चर मजदूरों का जो है वो अभी जो जिस हिसाब से अपना जो जो मॉडल है देश का,
उसमें माइग्रेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। और इनफॉर्मालिटी, देश में धीरे धीरे इनफॉर्मल लेबर की संख्या, अनऑर्गेनाइज लेबर की संख्या की बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है और ऑर्गेनाइज लेबर कम होता जा रहा है। तो अनऑर्गेनाइज होने का मतलब ये है कि इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, सभी जगह पर पीस रेट पर काम मिलता है, ठेके पर काम मिलता है, आउटसोर्स से काम मिलता है और वर्करों को कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आज हम अहमदाबाद में जो देखते हैं तो यहाँ पर 12 घंटा वर्कर काम करते हैं, क्योंकि पीस रेट है, जितना काम करोगे उतना पैसा ज्यादा मिलेगा, इसलिए वर्कर रात दिन काम करते हैं। उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसको कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है। और इसके अलावा कुछ ज्यादा मांग करे तो ठेकेदार या कंपनी जो उसको काम से निकाल देंगे और लोग आ जाएंगे। तो ये एक प्रकार से शहरों में अब सरप्लस लेबर जो है, सरप्लस लेबरों की एक फौज तैयार हो रही है। और कंपनी जो है उसका मुनाफा मैक्सिमाइज करने के लिए वो वर्करों को कम से कम, चीपेस्ट लेबर जो है वो माइग्रेंट ही है। और इंडस्ट्री अब कहीं पर भी लोकल वर्करों को काम पर नहीं रखती है। इंडस्ट्री का मानना ये है कि हम लोकल वर्कर रखेंगे तो ये बार बार छुट्टियां मांगेंगे, संगठित होंगे, हमारे सामने आवाज करेंगे, इससे अच्छा माइग्रेंट ले आओ, साल में एक दो बार गांव में जाएंगे तो बाकी रात भर यही काम करेगा। तो ये पूरा भी पिक्चर है। सेकंड जो ये थे, माइग्रेंट लोग रहते कहाँ पर है, क्योंकि हमारा तो होमलेसनेस के साथ सीधा एक सवाल है। क्योंकि ये वर्कर जो थे आते मुख्य तो सिंगल मेल माइग्रेशन का एक है, सेकंड फैमिली माइग्रेशन। तो हम अहमदाबाद में खास यही चीज है कि शहर में फैमिली माइग्रेंट के लिए कोई ऐसी स्पेस ही नहीं है कि जहाँ पर फैमिली अपना किराए का मकान ले सके। तो हमारे अक्सर ट्राइबल माइग्रेंट जो है वो खुले में, ओपन स्पेस, फुटपाथ, खुली जगह पर रहते हैं, ओवर ब्रिज के आसपास। और सेकंड जो है वो वर्क साइट, जहाँ कंपनी है, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चलती है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं ताकि उसको किराया नहीं देना पड़े। तो एक तो देख वर्क साइट पर बहुत बड़ी पौध रहती है। और हमारा मानना है कि वर्क साइट पर जो वर्कर काम रहते हैं वो ज्यादा एक्सप्लॉटेड होते हैं, उसका ज्यादा शोषण होता है, उसको रात दिन काम करवाया जाता है और सुविधा के नाम पर काफी चीजें काट ली जाती है कि आपको हमने लाइट दी, लाइट का 500 महीने का काट लेंगे, पानी का इतना काट लेंगे। तो वहां पर उसके वेतन जो है बहुत कम होता है, जो साइटों पर काम करते वर्कर उसकी मजदूरी बहुत कम होती है। इसलिए एक तो एक साइट वाला है। सेकंड जो है सिंगल मेल माइग्रेंट ज्यादातर चालियों में, स्लम्स एरिया में रहते हैं, जहाँ पर एक ही कमरे में 8-10 लोग साथ में रहते हैं और पर मंथ 500 से लेके 1000 रुपया उसके भाग में आता है। और तीसरा जो ग्रुप है वो ओपन स्पेस में रहता है, वो मैंने बताया। तो ये 3 प्रकार के सेटलमेंट है इसमें। अब ये खुले में क्यों रहते हैं, इनका लॉजिक क्या है खुले में रहने का? क्योंकि ये जो है एक तो उसकी सीजनलिटी है, वो कब आएंगे कब जाएंगे उसको खुद को भी मालूम नहीं है कि मुझे कब अहमदाबाद आना है और कब वापस गांव जाना है। वो लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका स्थान पक्का है कि वो इसी लोकेशन पर रहेंगे और यहाँ से काम ढूंढेंगे। और ये अपना हमेशा सोशल नेटवर्क जो है उसका एक सपोर्ट सिस्टम जो है उस एरिया में हो जाता है, तो वहां से वो हटना नहीं चाहता। और उसके जो लॉजिक है ओपन स्पेस में रहने का, वो 2 या 3 मेजर लॉजिक है। उसको पीने का पानी, पानी कहाँ से मिल जाएगा, शौचालय की सुविधा कहाँ आसानी से मिल जाएगा, और तीसरा जो है सुरक्षा, कि कहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। यदि वो अनजान जगह पर, हिडन जगह पर रहेंगे तो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो वो सर आपका फुटपाथ। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, 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 आ रही है आवाज? आपका आवाज अभी भी नहीं आ रहा है। हेलो, 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 हेलो,
अरे या भाई सर देयर हैज बीन प्रॉब्लम ऑन हिज साइड, आप कंटिन्यू कर लीजिए। क्या है? उनकी तरफ पे एक प्रॉब्लम हो गई है कनेक्शन का, आप कंटिन्यू कर लीजिए, बाकी सबको आवाज़ आ रही है। ओके ओके। तो एक तो बेसिक एक सुविधा को लेके ये अपना लॉजिक लगाते हैं कि कहाँ पर रहना चाहिए। सेकंड जो है कि इसमें वेज जो है उसकी मजदूरी बहुत कम है, उसको महीने भर काम नहीं मिलता है। कैजुअल वर्कर है, 5 दिन यहाँ काम करेंगे, 1 दिन यहाँ करेंगे, उसका मालिक रोज चेंज ही होता रहता है। तो ऐसे वर्कर जो है जिसके मालिक चेंज ही होता रहता है, उसका काम का कोई ठिकाना नहीं है और उसको महीने में मुश्किल से 20 दिन काम मिलता है। ऐसे वर्करों की आमदनी बहुत कम होती है और पेमेंट बहुत कम है। मिनिमम वेज भी कहीं 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 जगह पर मिनिमम वेज भी मिलता नहीं है और मजदूरों के ऊपर हमेशा ये भी प्रेशर है कि शहरों से ज्यादा कमाई करके सेविंग करके गांव भेजना है और वो यहाँ खर्चा करेंगे तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं बचेगा। तो और दूसरा मजदूरों को यहाँ हर एक चीज कॉस्टली मिलता है। आप एक देश के नागरिक हो, आपको पीने के पानी के भी खर्चे हैं। आप शौचालय जाओगे तो पे एंड यूज शौचालय यूज करोगे, उसका भी कॉस्ट है आपको। आपको वहां पर लाइट है, उसकी भी कॉस्ट है। फ्यूल जो केरोसिन है, गैस कनेक्शन है, उसकी भी कॉस्ट है। तो यदि मजदूर सारा का सारा जो खर्चा इसी कॉस्ट में करेंगे तो वो सेविंग करना चाहते हैं कि ये मेरा आवास का खर्चा कम हो जाए, शौचालय का खर्चा कम हो जाए। ऐसे सब लॉजिक लगा के वो ओपन स्पेस प्रीफर दे करता है। और यहाँ पर मजदूर को हर एक चीज खरीदना है। हमारा एक अध्ययन है राशन और पीडीएस को लेके कि मजदूर का टोटल कमाई का जो शहरों में जितना कमाता है उसका 40% तो खर्चा उसका केवल राशन और रहने में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पीडीएस का भी राशन नहीं मिलेगा उसको, यहाँ पर उसको गैस या केरोसिन नहीं मिलेगा, राशन की कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तो हर एक उसके ऊपर खर्चा है। तो ये भी इसका एक लॉजिक है। तीसरा जो पूरा जो शहरों का जो प्लानिंग होता है, जो अर्बन प्लानिंग अथॉरिटी है, उसकी नज़र में ये माइग्रेंट पॉपुलेशन है ही नहीं। आप कोई भी टीपी प्लान होता है, टाउन प्लानिंग होता है, तो उसमें आप हेल्थ का दे, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक सर्विस सबका ध्यान रखते हो, लेकिन उसमें माइग्रेंट कहाँ रहेगा? क्योंकि माइग्रेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए भी वर्कर आएगा, आपके वहां पर साग भाजी बेचने भी आएगा। तो इन वर्करों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक एक जो पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का जो ये केस था हर्षमंदर का, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर एक शहरों में 1 लाख की आबादी पर एक रेन बसेरा होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे अहमदाबाद में 65 लाख की आबादी में केवल 30 रेन बसेरा है और उन रेन बसेरों की कैपेसिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 100 की होनी चाहिए, मिनिमम 100। लेकिन यहाँ गुजरात में जो हमारे अहमदाबाद में सेंटर है वो 30 की कैपेसिटी मिला के केवल 1700 की है। तो जो इसी प्रकार की जो कॉमन फैसिलिटी है ना अर्बन प्लानिंग में, ना लेबर डिपार्टमेंट में, ना इंडस्ट्री में कहीं नहीं होता। कई जगह पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। लेबर हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है, रेन बसेरा है, नाइट शेल्टर है। अब कई कई इंडस्ट्रियल पॉकेट्स में भी इसी प्रकार की लेबर हॉस्टल मेस का कॉन्सेप्ट इस प्रकार का आ रहा है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है क्योंकि मजदूर यहाँ पर रहना नहीं चाहते, वो वापस अपने गांव तक जाना चाहते हैं, उसको केवल व्यवस्था चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था ना स्टेट और ना इंडस्ट्री इन वर्करों को भी प्रोवाइड करते, तो उसी के कारण जो है इसको कुछ नहीं मिलता है। और हर साल जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हमारे अहमदाबाद में भी कई सारे केस ऐसे हुए, जैसे अभी लेटेस्ट सूरत का एग्जांपल है। सूरत में जो रोड ये हिट एंड रन केस हुआ जिसमें 15 मजदूरों की मौत हुई। तो हम एक जो सिविल सोसाइटी है या आम नागरिक है वो यही सोचता है कि गलती उन मजदूरों की है जो फुटपाथ पर सोया,
लेकिन हम कभी ये नहीं थे सोचते कि वो गलती उन मजदूर की नहीं है, उसकी हालात ऐसी कर दिया है, और एक स्टेट और एक इंडस्ट्री की भी फेलियर है इसमें कि उन मजदूरों को आज भी फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। वो मजदूरों को हम क्रिमिनलाइज नहीं करें, वो मजदूर की गलती नहीं है उसमें कि मजदूर वहां पर सो दे रहा है, उस इंडस्ट्री जहां काम कर रहा है उसने उनको बहुत फैसिलिटी नहीं दी। तो इसी प्रकार से जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स होता है तो हम ज्यादातर सभी लोग जो है उन मजदूरों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि मजदूरों की गलती है, जबकि मजदूरों की गलती नहीं है वहां पर। और लाखों की मात्रा में हमारे अहमदाबाद में हमने एक पिछले वीक एक रियलिटी चेक किया था, सभी जगह पर खुले में लोग फुटपाथ पर ही सो रहे हैं। तो जब तक हम उन मजदूरों की क्या जरूरत है, क्या नीड है, और सरकार उसको संवेदना के साथ नहीं सोचेगा, तब तक इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। रोड दी एक्सीडेंट्स के बारे में हम कितना भी अवॉइड कर ले ड्राइवरों को ये सब, लेकिन साथ साथ में ऐसे वर्कर, ऐसे जो चौथिक समूह है जो फुटपाथ पर सोते हैं रहते हैं, उनके बारे में भी एक अवेयरनेस, उनके लिए एक अप्रोप्रिएट व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। केवल ये एक अवेयरनेस का मामला नहीं है, इसके साथ एक व्यवस्था भी बहुत बहुत जरूरी है। ये रोड की एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर क्या होता है इसमें, एमएसटी एक्ट के अंतर्गत ये केस बनता है। एमएसटी के अंतर्गत केस चलेगा, यदि व्हीकल ओनर के पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी से तो मुआवजा मिलेगा, अदरवाइज वो ओनर से मिलेगा, जो जो वाहन चला रहा है उसी से मिलेगा। और इसमें ज्यादातर जो है इस प्रकार के केसों में जो मजदूरों के पास उपयुक्त केवाईसी नहीं होने के कारण उसको पूरा मुआवजा भी उस तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि उसके पास आधार नहीं है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, दोनों चीज है तो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। तो इसी प्रकार के जो है ना ये नागरिकता प्रूव करना कि ये यहाँ का है, वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सेकंड, जब भी बड़ा हादसा होता है, रोड दुर्घटना बहुत बड़ी होती है, तो ज्यादातर उसमें मुख्यमंत्री सहायता या फिर प्रधानमंत्री सहायता कोष से इन वर्करों का या इस जो जो ऐसे लोग हैं उनको मदद मिल जाती है। सूरत वाले केस में, अभी रिसेंटली सूरत वाला केस है, तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। वहाँ 15 लोगों की मौत हो गई, ट्रक के नीचे कुचल कर मर गए। अब राज्य सरकार ने 2 लाख, राजस्थान सरकार ने भी 2 लाख, और प्रधानमंत्री भारत सरकार ने भी 2-2 लाख का मुआवजा की घोषणा कर दी। अब वो घोषणा तो कर दी, अब वो उन मजदूरों को अभी हम ऐसे सारे कागज जुटवाने के लिए, उसका आधार कार्ड, उसका बैंक, उसका नॉमिनी कौन है, उसकी फैमिली की पूरी, तो वो कागजों में ऐसे उलझ जाते हैं कि सालों साल लग जाते हैं ऐसे मुआवजा पहुंचाने में भी। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा एक गैप है कि टोट, जो इंग्लैंड में बहुत ही फेमस है कि जो एक दुर्घटना किससे कारण हुई, तो उसको हम कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते। वो जो रोड सही नहीं होना या उस प्रकार से अप्रोप्रिएट व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रशासन की लापरवाही है, उसी प्रकार से उसको कभी उसके ऊपर केस नहीं होता और ना उसको कभी जिम्मेदार भी ठहराते हैं। तो उसी प्रकार का जो ये मुद्दा है उसको लेके ये पूरा मामला जो है ये तो ही रह जाता है। और रोड पर जो लोग रहते हैं, हमारा जो जो संविधान है, संविधान में आर्टिकल 21 सबको मालूम है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जीने के अधिकार में आवास अधिकार भी इम्पोर्टेंट है और वो भी महत्वपूर्ण है। तो कभी हमने ये जो वायोलेंस हो रहा है इस प्रकार का कि जो लोग खुले में रहते हैं, उसको हम वही बताते हैं कि ये जबरदस्ती लोग आ गए, इसको हटाना चाहिए, लेकिन उसकी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। कुछ लेबर लॉज है, लेबर लॉज में भी इन प्रकार के जो वर्कर है, इनफॉर्मल लेबर है, उनके लिए भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यदि वो उसके प्रीमाइसिस में एक्सीडेंट होता है या उस वहां पर कोई दुर्घटना होती है तब तो उसको मुआवजा मिलता है, लेकिन जब फुटपाथ पर जो 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 वर्कर है उसके लिए लेबर लॉज में भी नहीं है। जबकि फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारी चीजें कहा गई है कि जो भी आपके वर्कर है उसके लिए आपको बेसिक फैसिलिटी, पीने का पानी, आवास, लेबर कॉलोनी,
एक कैंटीन, इसी प्रकार की व्यवस्था करना है। लेकिन आज सारी इंडस्ट्री जो है इस प्रकार के रूल्स नियमों का पालन नहीं कर रही है। ज्यादातर वो अपने वर्करों के लिए, जो अपने पेरोल पर है, उनके लिए तो फिर भी एक जो 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 एजुकेटिव लेवल के वर्कर है उनके लिए तो सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले वर्कर है, उसके लिए कोई भी इंडस्ट्री में वर्करों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस प्रकार से इन मजदूरों की हालत हो जाती है। बहुत बड़ा जो ये मुद्दा है, अभी हम अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि अर्बन गवर्नेंस। क्योंकि जब तक मजदूरों को इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा, और वो भी खुद चाहेगा नहीं, मजदूरों को यही लगता है कि हमें कुछ समय के लिए रहना है, इसलिए हम कुछ आधार या बैंक अकाउंट यहाँ नहीं खुलवाएंगे। लेकिन उसको यहाँ की जरूरतों की जरूरत है। जैसे ही भारत सरकार ने अभी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बनाई है, तो काफी यूजफुल है। वो मजदूर जहाँ जाए उसके लिए राशन मिले। लेकिन उसी के साथ साथ मजदूरों की जो मूलभूत जरूरत है शहरी नागरिकता का, और उसके के साथ थोड़ी सिविक इम्यूनिटी, चाहे पीने का पानी, शौचालय, आवास, लाइट, स्वास्थ्य सुविधा, बहुत बड़ी मात्रा में फैमिली के साथ माइग्रेशन करते हैं। उनके बच्चे जो जो आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ना ICDS की व्यवस्था है, ना वैक्सीनेशन। जो बच्चे और जो प्रेग्नेंट महिला है, वर्कर है, उनके लिए यदि वैक्सीन की कोई सुविधा है, न्यूट्रिशन का कोई नहीं है। उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ का, तो ये पूरा जो है सरकारी योजनाओं से छुटा हुआ एक तबका है, और उसके बारे में थोड़ी संवेदना भी जरूरी है। और सरकार को अब मुझे लगता है कि कम से कम इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अब सरकार को सबसे पहला जो है कि इन वर्करों को आइडेंटिफाई करके रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जबकि माइग्रेंट लेबर के लिए एक इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट 1979 है, जो 79 में हुआ था, आज तक देश में कहीं लागू नहीं हुआ। तो हमारा मानना है कि जो भी मजदूर आ रहा है, उसका फॉर्मली कहीं न कहीं एक जगह पर उसका संबंध एस्टेब्लिश होना जरूरी है। जब तक इनफॉर्मेलिटीज रहेगी लेबर की, तब तक ऐसे हादसे और ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। तो कम से कम लेबर डिपार्टमेंट और जो कॉरपोरेशन है, उनको इन वर्करों के नंबर्स कितने हैं, कहाँ के वर्कर्स है, क्या काम करते हैं, और इंडस्ट्री सरकार को मिलके इनके लिए उपयुक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो भी अभी सरकार के पास सुविधा है, चाहे वो नाइट शेल्टर हो, लेबर हॉस्टल की बात करें, तो उसकी सफिशिएंट नहीं है, वो क्षमता बहुत कम है। जबकि यहाँ लाखों में की मात्रा में है, और हमारे पास बहुत कम इस प्रकार की संख्या है। तो इसकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, और जो जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स है उसको यूनिवर्सलाइज करना पड़ेगा। जब तक यूनिवर्सलाइज नहीं होगा बेनिफिट, तब तक मजदूरों को ना गांव में लाभ मिलेगा, ना शहरों में मिलेगा। तो जो ये सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट है वो यूनिवर्सलाइज करना पड़ेगा। और लास्ट जो है कि जो भी मजदूर का जो है, जब भी वो शहरों में आते हैं तो दो चीज निगोशिएट करता है हमेशा, रहना और खाना। यदि ठेकेदार या मालिक उसको रहने खाने की व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत कम रेट में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यदि हमें वर्करों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, तो वो एक वेज निगोशिएट करना भी सीखे। क्योंकि जब तक उनका वेज इंक्रीमेंट नहीं होगा, तब तक उनको इस प्रकार की फैसिलिटी या इस प्रकार की सुविधा के लिए वो आगे नहीं आएगा। तो हमारा मानना है कि जो भी सारी समस्या हो रही है, उसका बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है कि उन वर्करों को पूरा पेमेंट नहीं मिलता। 12-12 घंटे काम करने के बाद भी आज अहमदाबाद में 250 रुपया से लेकर 300 रुपया मजदूरी मिलती है, जो मिनिमम वेज से भी कम है। जबकि आज पूरी विश्व में लिविंग वेज की बात हो रही है, और हम उनको मिनिमम वेज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो ये मेरा दिक पक्ष था। और ये मैं समझता हूँ कि जो भी शहरों में इस प्रकार के पॉकेट्स है माइग्रेंट्स के, वहां पर इस प्रकार की सचेतना के साथ इन मजदूरों को सरकार की ओर से
फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए और उनका पुनर्वसन भी करना चाहिए सरकारों को। ज्यादातर सरकार जब भी इस प्रकार के यदि पॉकेट्स देखते हैं तो एविक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, डिमोलेशन कर देते हैं। अब वो मजदूरों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने कई बार देखा है कि मजदूरों को आज कॉर्पोरेशन या पुलिस वाले आके हटा के ले गए, हफ्ते भर के बाद वापस आ गए, क्योंकि उसके पास और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो हमें सरकारों को और हम सबको साथ में मिलके इसके लिए अल्टरनेटिव खड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए मजदूरों को कैपेबल भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। कोई सवाल जवाब हो? और there is a problem उनके connection में. He'll speak in shortly. Sir, Mr. Sanjeev Biswas had asked, thanks for such awareness being to those peoples whose are rarely unknown such risk factors respectively. Please bring awareness regarding the personal safety, road safety, industrial safety guidelines. Mr. Sanjeev Biswas has asked. Sir, am I audible? So Mr. Sanjeev Biswas ने पूछा है that अगर आप बता सके पर्सनल सेफ्टी और रोड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी गाइडलाइंस पे. हेलो सर, मिस्टर महेश सर. हेलो, आप बताएं। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। ओके. मिस्टर संजीव बिस्वास ने पूछा है अगर आप उनको बता सके पर्सनल सेफ्टी, रोड सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी गाइडलाइंस पे. तो इसमें जो है दो दो चीजें। एक तो जो मजदूर गांव से आ रहा है उसकी आइडेंटिटी एज ए लेबर नहीं है। वो गांव में जाकर वो एज ए फार्मर या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से वो उसकी आइडेंटिटी है और शहरों का कोई एक्सपोजर नहीं है। वो खेती बाड़ी का थोड़ा काम करके सेकंड डे पर यहाँ आ जाएगा और अनस्किल लेबर है ये। और स्किल होते होते भी उसको टाइम लगता है यहाँ के क्लाइमेट में। तो वो एकदम अवेयर होके गांव से प्रिपरेशन पूरी तैयारी के साथ वो शहरों में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर किस प्रकार की सुविधा है, किस प्रकार की फैसिलिटी है और क्या वहाँ पर व्यवहार करना है। तो अपना सोशल नेटवर्क के थ्रू अपने जानकारों के साथ वो जब शहरों में आते हैं तो एकदम अनजान आदमी है। वो उसके को सीधा कोई साधन पकड़ा देता है और बोले आप लोडिंग अनलोडिंग का काम कर लो या ये कर लो। तो उससे भी हमें सेफ्टी की अपेक्षा करना उन मजदूरों को जिनका कोई कोई अनुभव ही नहीं है और उसकी आइडेंटिटी एक अलग है। तब हमें जो जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ये हमें लगता है कि उन ठेकेदार की, उन इंडस्ट्री की है
कि उनके प्रीमाइसिस में जो भी लोग काम करने आ रहे हैं उसको हम प्रॉपर एजुकेट करें, अवेयर करें और उसके बाद हम उसको काम दें। हम देख, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे कई सारे देख सेफ्टी इंचार्ज जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे देख अहमदाबाद में अभी मेट्रो का काम चल रहा है, तो उसके देख जो देख सेफ्टी इंचार्ज है, इसके अलावा हम कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में मिलके हम काम कर रहे हैं ये सेफ्टी अवेयरनेस के ऊपर। तो सेफ्टी इंचार्ज का सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि साहब एक तो हम वर्करों के लिए अवेयरनेस के लिए समय मांगते हैं और मेरा मैनेजर मुझे समय नहीं देता, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट जो है एक लिमिट में खत्म करना है, एक समय में हमें पूरा करना है। यदि आप सेफ्टी अवेयरनेस के लिए वर्करों का टाइम वेस्ट करोगे तो ये तो होता रहेगा। तो एक तो जो मानसिकता है इन लोगों की कि भाई हमें काम करना है, मजदूर कैसे भी काम करे, उसकी सुरक्षा का हमें कोई लेना देना नहीं। सेकंड, ये जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये एस्टिमेट भी लगाते ये लोग कि ये साइट 3 साल में खत्म होगी तो कम से कम 5 एक्सीडेंट होगा या 3 एक्सीडेंट होगा, तो उसके लिए कम से कम 30 लाख का खर्चा है जो अलग अलग मुआवजा के तौर पर। तो एस्टिमेट में प्लान करते ही है। जो सबसे अधिक चिंता की बात है कि इस प्रकार के एस्टिमेट पहले से प्लान कर लेते हैं कि इतने लोगों का ये होने वाला, लेकिन उसको रोकने के लिए इस प्रकार का घटना नहीं हो इसके लिए कोई बात नहीं करते, ना वर्कर को वो भी एजुकेट करते। तीसरी चीज जो है सेफ्टी मेजर्स, ये जो भी साइट है वहां पर बहुत बड़ा जो है कि वर्कर हेलमेट नहीं पहनते, ग्लोव नहीं पहनते। ये लगातार कंप्लेन आती है हमारे सामने, जब भी हम बात करते बोले वर्कर मना करते, और ज्यादा हम पुशफुली वर्कर को बोलते कि आपको पहनना ही पड़ेगा तो काम छोड़ देता, अलग जगह भाग जाता। तो ये दोनों साइड से जो है हमें वर्कर एजुकेशन और उनके लिए क्यों जरूरी है ये यदि बात करना बहुत जरूरी है। जब तक आदत नहीं बनेगी इन लोगों की, और उनके लॉजिक अलग अलग है वर्करों का, जब हेलमेट नहीं पहनने के भी लॉजिक है, ग्लोव नहीं पहनने के भी लॉजिक है, लेकिन उस इक्विपमेंट के ऊपर कभी हमने इन्वेस्ट नहीं किया कि वो जो इक्विपमेंट पहन रहा है वो हेलमेट, वो उसकी यदि स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका भी वजन ज्यादा है कम है, उससे क्या उसको भी दिक्कतें होगी, उसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। हम सीधा बोलते हेलमेट दिया पहन लो, लेकिन उस हेलमेट की हेलमेट भी कैसा भी होना चाहिए उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो मुझे तो लगता है ये बहुत जानकारी जरूरी है। तीसरा, जब भी हम फुटपाथ पर ये जो रोड साइड पर वर्कर रहते हैं उसमें दो कैटेगरी है। एक तो माइग्रेंट रहते फुटपाथ पर, सेकंड जो है बहुत सालों से, मतलब ये लगभग यहाँ के घुमंतु जाति, जो शहरों में घुमंतु जाति अब काफी बड़ी मात्रा में आ गई है। हमारे देश गुजरात में उसको वणजारा, वाघरी उस प्रकार के नाम से भी कहा जाता है। अब उनके पास शहर का कोई आधार पुरावा ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लोग सालों से उसी जगह पर रहते हैं। अब एक और उसको ऐसे विक्टिमाइज कर दिया, ऐसे अपराधीकरण कर दिया कि ये लोग चोरी चकारी करने वाले लोग हैं। जब भी आसपास में कोई चोरियां होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले इन्हीं लोगों को पकड़ते हैं कि यही गैंग है। तो इसी प्रकार का मानसिकता से जब हम इन लोगों के लिए काम करेंगे तब तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, और इनकी जरूरतों को हमें समझना पड़ेगा। यदि हम उसका लॉजिक नहीं समझेंगे, हम एक लोकेशन से सेकंड लोकेशन पर उसको विस्थापित कर रहे हैं, तो वहां पर उसका रोजगार का लॉजिक है, बेसिक फैसिलिटी का रोजगार है, उसका सोशल कनेक्शन, यहाँ पर उसका सोशल एक नेटवर्क है जहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग जगह से। तो जब उसके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये जो है सुरक्षा की बात करना वो थोड़ी बेईमानी होगी। Thank you, sir, for answering that question. Also, Mr. D.V. Jain, जानी ने पूछा है that two-wheeler road cars का एक्सीडेंट कैसे कम कर सकते हैं विलेजेस में जहाँ पे रोड्स अभी तक प्रॉपर्ली बिल्ड ही नहीं हुई हैं। देखो, रोड दी सेफ्टी पर मेरा इतना भी एक्सपोजर नहीं है और ना मैं दी जानकारी रखता हूँ रोड सेफ्टी के ऊपर। मेरे पास जो वर्कर की सेफ्टी है उसके बारे में थोड़ा अनुभव है मेरे पास, पर फिर भी मैं जो इस प्रकार के है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर एजुकेशन जो है
रोड रोड के जो ये जो ड्राइविंग के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, उसको लेके हमारी मानसिकता बहुत है नहीं, और हम बिंदास जो है इसको, कोई हमारे स्कूल कॉलेजों में भी इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। तो मुझे अधिक लगता है ये अधिक सेफ्टी जैसा मुद्दा जो है वो स्कूल से अधिक शुरुआत होना चाहिए और एक सिलेबस होना चाहिए, ताकि आगे बड़ा होकर वो इसको फॉलो करे। और इसके लिए अप्रोप्रिएट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर, जब अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और अप्रोप्रिएट यदि ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो है वो होती रहेगी। फिर भी जो और भी एक्सपर्ट है रोड द एक्सीडेंट्स के बारे में, वो लोग ज्यादा कह सकते हैं इसमें। Thank you, sir, for this highlight. Mr. Karthik, I have asked कि लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर आप ब्रीफ कर सके विद रिस्पेक्ट टू रोड सेफ्टी मेजर्स जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में एप्लीकेबल है। एक बार ठीक से बताइए। Factory premises. I will unmute Mr. Karthik so he can talk to you. तो ज्यादातर जो है फैक्ट्री प्रीमाइसिस में या वर्क साइट में जो वर्कर रखा जाता है, उसमें सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम यहाँ अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिटों में हम काम करते हैं, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिटों में ज़्यादातर एक यूनिट में 50 से 60 वर्कर काम करते हैं, और ज़्यादातर मालिक भी चाहता है और वर्कर भी चाहता है कि वो प्रीमाइसिस में रहे, क्योंकि उसमें पेमेंट कम मिलता है, इसलिए उसकी सेविंग कम हो जाए और बढ़ जाए, इसलिए वो प्रीमाइसिस में प्रीफर करता है। लेकिन जो प्रीमाइसिस में रहते हैं यूनिटों में, तो वो बहुत खराब हालत में, एकदम वनरेबल स्थिति होती है। तो वो फैक्ट्रियों के जो मशीन से उसके नीचे वर्कर्स हो जाते हैं, कुकिंग भी उसी के आसपास करते, उसके लिए कोई स्पेशल अलग जगह नहीं है, अलग रहने की व्यवस्था नहीं, उसी फैक्ट्री में अलग अलग मशीनों के अंदर नीचे साइड में वो सो जाते हैं। तो सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। और हमारे अहमदाबाद में लगभग महीने में 2 या 3 मेजर फायर द एक्सीडेंट्स होते हैं फैक्ट्रियों में। इसका कारण ही यही है कि वर्कर वहां पर ही रहते हैं, वहां पर ही कुकिंग करते हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रिक तारे जो है, इलेक्ट्रिक तार वो बहुत खुले रहते हैं। फिर जहां पर गेट है बॉयलर वहां पर ही होगा, तो बॉयलरों के कारण जो भी हजार्डस स्थिति हो जाती वहां की, और उसी से जो है ये सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो हमारा मानना ये है कि वर्क प्लेस पर वर्कर तभी रहे कि जब उसके लिए स्पेशल एलोटेड लेबर कॉलोनी हो या स्पेशल मकान हो। अदरवाइज वो यूनिटों में जब मशीनों के नीचे सोना है, वहां पर ही रहना है, नहाने धोने का पानी भी वही यूज करना है, तो वो बहुत खतरनाक चीज है और असुरक्षित भी है। और मालिक चाहता है कि भाई मैं उसको रहने की व्यवस्था करता हूँ, इसलिए उसको पेमेंट कम देना मेरा आधे अधिकार है, और आधी रात को भी कहेंगे मजदूर को काम करना पड़ेगा। तो मजदूरों का शोषण जो है सबसे ज्यादा वर्क साइटों पर होता है। तो ये शोषण का एक तरीका है, इसके साइट पर जगह दे दो वर्कर को रहने की, और वहां से शोषण करते रहो, और ना कोई साधन सुरक्षा के पूरे प्रोवाइड करो। Thank you, sir. I hope Mr. Karthik को इतना मिल गया। Also we have Mr. Muniswamy Vasu ने पूछा है कि आप रोड सेफ्टी challenges for migrant labor with respect to traffic rules and valid driving license के बारे में कुछ बता सकते हो? देखो, ड्राइविंग लाइसेंस जो माइग्रेंट यहाँ है ज्यादातर, वो उसके बाद मैंने पहले भी बोला कि उसके पास यहाँ के आधार पुरावा बहुत कम है, और जो सरकारी फॉर्मेलिटीज है, मजदूरों के पास ज्यादा से ज्यादा एक बैंक अकाउंट मिलेगा और एक आधार कार्ड मिलेगा, तीसरी चीज कहीं की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतने कम उम्र में 15-16 साल की एज में वो लेबर मार्केट में आ जाता है। तो ना कई बार वो इलेक्शन कार्ड बनवाता है, ना वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, और ना वो पान कार्ड, उस प्रकार की जो जरूरत है ना, वो उस प्रकार के आधार पुरावे इन मजदूरों के पास नहीं होते। अनस्किल्ड लेबर
और सीजनल माइग्रेंट इनके पास नहीं है, और वो उसकी शायद उसको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो मोटरसाइकिल पर चलने वाला नहीं है। धीरे धीरे जब वो अनस्किल में से स्किल लेबर बनता है, थोड़ी आमदनी बढ़ती है, थोड़ा वो शहरों में स्थिर होना चाहता, तब जाके सेकंड लेयर पर वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है, वो पैन कार्ड बनवाना चाहता है। फिर उनके पास प्रॉपर कागज नहीं होने के कारण वो घूस देके, एक्स्ट्रा पेमेंट देके वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट देके वो पैन कार्ड बनवाता है। तो उसका पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो अवेयरनेस नहीं हुई, वो मोटरसाइकिल चलाना तो सीख गया है, लेकिन उसको कोई उस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं मिला प्रॉपर। तो इसी कारण एक तो एक्सीडेंट होता है। मैं सेकंड एक एग्जांपल बताऊं, मैं अहमदाबाद में जो स्मार्ट सिटी जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अंतर्गत घरों से कचरा लेने के लिए ट्रैक्टर आता है यहाँ पर, और एक टेम्पो दे आता है। उस टेम्पो का ड्राइवर और वो कचरा उठाने वाला, वो दोनों ही ट्राइबल परिवार से है, और ज्यादातर अहमदाबाद में मध्य प्रदेश और गुजरात के सरहदी एरिया से ट्राइबल फैमिली आती है। ये टेम्पो ड्राइवर और ये ट्रैक्टर ड्राइवर, उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं है। वो सरकार ने वो प्राइवेटाइज कर दिया, आउटसोर्स कर दिया है, ठेकेदार के थ्रू ये रिक्रूट हो रहा है। तो उसका जो वेरिफिकेशन है प्रॉपर, सरकार भी उसको पूरा वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। और अहमदाबाद में इसे ट्रैक्टर चलाने वाले, विदाउट लाइसेंस चलाने वाले बहुत सारी संख्या में है, और बहुत बड़ी संख्या है ये। तो इनकी जरूरत जब पड़ती है तब वो कागज तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। इवन हमारे जो 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 अहमदाबाद में एएमटीएस और बीआरटीएस चल रही है, और बीआरटीएस के ड्राइवरों का भी जिस हिसाब से उसको 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस में काम करवाया जा रहा है, और उसमें उसके ऊपर रूल्स फॉलो करने का भी इतना प्रेशर है, लेकिन उसको अवेयरनेस, एजुकेशन, सेंसिटाइज करना, उसके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तो मुझे नहीं लगता सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा। जब तक हम ह्यूमन में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे करेंगे इन्वेस्ट, तब तक इसमें भी सुधार बहुत कम होगा। Thank you, sir. We'll take one last question from Miss Ankita. She has asked कि कैसे laborers को aware करे ताकि वो कहीं और सोए from heavy machinery and equipments in case of accidents जहाँ पे ऐसी steps लेनी चाहिए। एक बार फिर से आप दोहराइए। हाँ सर, हम लेबरर्स को कैसे अवेयर करें दैट दे वो दूर रहे हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट से इन केस ऐसे एक्सीडेंट्स जहाँ पे उन्हीं को खतरा है। तो व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन? तो एक जो है ना, हमने देखा है कि जो भी वर्क साइट्स है वहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है। हम सब जानते हैं कि लैंड जो है सबसे आज प्राइम एसेट हो गई है और कमोडिटी हो गई है। तो जमीन बहुत शहरों में कम है, और फैक्ट्री मालिक भी चाहता है कि कम जमीन में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लग जाए, प्रोसेसिंग मशीन जो भी उसकी ज़रूरत है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ पर साइट कंस्ट्रक्ट हो रही है वो भी मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, और वर्कर के लिए या अलग अलग इक्विपमेंट के लिए स्पेशल प्रॉपर जगह रखनी है, तो वो उसके लिए उसकी मानसिकता नहीं है। तो वो वर्कर का तो हमेशा एक्सपोजर जो है उसी के साथ होने वाला है, जहाँ पर अलग अलग साधन है, मशीन से उसके आसपास में ही उसका काफी एक्सपोजर रहेगा, क्योंकि ये स्पेस का सब मैक्सिमाइज यूज करना चाहते हैं। और जब आप मैक्सिमाइज यूज की बात करते हैं, और सरकार के जो भी रूल्स है, फैक्ट्री एक्ट में बहुत क्लियर लिखा है कि आपको इस प्रकार के भी यूनिट में इतने फीट के बाद इतने फीट का अंतर रखना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल है। लेकिन वो सब भूल जाते हैं। अपने देश में सबसे ज्यादा घूस चलती है, तो घूस के कारण सब अपने नियतिक तरीके से सब प्लान एस्टिमेट सब पास करवा लेते हैं।
तब ऐसी स्थितियों में हम वर्कर को बोले कि आप उसके पास मत जाओ और आपके पास ये यदि सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमने जितने भी हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है या कंस्ट्रक्शन साइट से, वहाँ आज भी पुराने मशीन है। हमारे टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिटों में जो भी मशीनें चलते हैं अलग अलग, वो 30 साल 40 साल पुराने मशीन है, उसको अपडेट नहीं कर रहे लोग। जब तक ये मशीन है पुराने मशीन अपडेट नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर केबल वायरिंग हमेशा ओपन में रहती है, खड्डा है, पानी है, वहां पर लिफ्ट अलग अलग चलती है, क्रेनें चलती है, वो बहुत बहुत पुराने। और उसके जो जो है इंडिकेटर उस प्रकार के अलार्म जैसे भी है, तो वहां पर रिवर्स लेकर इंडिकेटर बजता है, आवाज होती है। तो उस प्रकार के थी आवाज भी नहीं होती, वो मशीन का इंडिकेटर खराब है, सब प्रकार के थी अलार्म सिस्टम खत्म है। उसी के पास इन्हीं लोग खतरे में भी रहते हैं। तो जोखिम तो है सभी साइटों पर। Thank you, sir. I hope this answers everybody's question. Thank you, sir, for coming today. बहुत-बहुत धन्यवाद. And I hope the audience are well educated about this topic. And but not the least, I would like to conclude today's session by thanking all the participants for their presence. Kindly fill the form to receive your certificates. And we hope to see you again in our future webinars. Thank you, sir, for coming today. Thank you.